السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج دن ہے بدھ کا اور تاریخ ہے 22 فروری سن 2023۔ دوستوں آج عمران خان نے ایک دفعہ دوبارہ خطاب کیا اور خطاب میں وہ انتہائی جو ہے وہ پرجوش دکھائی دیے، اور آج کا خطاب ان کا جیل بھرو تحریک کے بارے میں تھا، اور آج ہم اپنے ولاگ میں اسی خطاب کے کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ردا اور میں جو ہیں وہ کچھ پوائنٹس لے کر آپ کے سامنے تبصرہ کریں گے۔ عمران خان نے اپنے خطاب میں سب سے پہلے جو ہے وہ یہ بتایا کہ چیئرمین نیب جو نون لیگ کا نمائندہ تھا، نون لیگ کا بندہ تھا، اس کے باوجود وہ یہ کہتا ہے کہ امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ زبردستی لوگوں پر کیسز بنا رہی ہے، اور جو مجرم بیٹھے ہوئے ہیں اقتدار میں ان کے کیس معاف کیے جا رہے ہیں۔ کس معاشرے میں یہ ہوتا ہے، کس مہذب معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک وزیر اعظم جس کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے، جس کے اوپر منی لانڈرنگ کے کیسز تھے، اور وہ اس پر فرد جرم عائد کی جا رہی تھی، اور اسی دن اس کو اقتدار پر بٹھا دیا گیا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ ہم غلام نہیں ہیں، ہم کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں۔ شرم کی بات ہے چیف الیکشن کمیشن کے لیے کہ وہ اس امپورٹڈ حکومت کے جو ہے وہ کی بات مان رہا ہے اور آئین کے مطابق جو وہ فیصلے نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے بولا کہ آج جو ہمارے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف، انہوں نے تقریر کی، اور ردا ان کے اس تقریر میں آج وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ تیار ہو جائیں مہنگائی کے لیے، کیونکہ مہنگائی آ رہی ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ اور عمران خان نے بھی کہا کہ یہ قوم تیار ہے لیکن مہنگائی کے لیے نہیں، کسی اور چیز کے لیے۔ شمی السلام علیکم، السلام پاکستانی شمی، پہلی بات تو ابھی ترکی سے واپس آئے ہیں اور آتے کے ساتھ ہی پریس کانفرنس کر کے عوام کو سرپرائز دے رہے ہیں کہ میں آپ وہاں ترکی لوگوں کی مدد کرنے گیا تھا، مگر آپ کے لیے نیا ٹائم بم لے کر آیا ہوں۔ بالکل وہاں مدد کرنے گئے تھے نا، یہ اس کی زلزلہ متاثرین جو تھے ان کی مدد کرنے گئے تھے، آتے کے ساتھ ہی پاکستانی عوام پہ کون نیا بم پھوڑ دے گا، مہنگائی کے لیے تیار رہیں۔ دیکھیں نا، مہنگائی کرنے سے پہلے ہی عوام کو وارننگ دیتے ہیں کہ آپ لوگ تیار ہو جائیں، آپ لوگ اپنی جیبیں بھر لیں، یا آپ لوگ جو 4 روپے کما رہے ہیں ان کو سیو کر لیں، مگر 4 روپے جو ہے 2 دن بعد جو 2 روپے ہو جائیں گے۔ بالکل پتہ ہے $60 بھی ڈالر جب بڑھ رہا تھا اس سے پہلے آ کے بتا رہے تھے کہ مہنگائی جو ہوگی، ہم مشکل فیصلے کر رہے ہیں، ہماری مجبوری ہے مشکل فیصلے کرنا۔ مشکل فیصلے ان کی ڈکشنری میں صرف مشکل فیصلوں کا مطلب یہی ہے کہ مہنگائی کرنا۔ کہتے ہیں نا روز بروز مہنگائی کرتے چلے آ رہے ہیں، اور آؤٹ پٹ کہتے کوئی بھی نہیں ہے۔ عوام تو ٹیکس دے ہی رہی ہے نا، عوام ڈبل قیمت میں پیٹرول بھی لے رہی ہے، ڈبل قیمت میں بجلی کے بل بھی دے رہی ہے، ڈبل قیمت میں گیس بھی لے رہی ہے، مگر اس کا آؤٹ کم کیا ہے کہ کتنی مہنگائی اور کرنی ہے۔ ابھی آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان میں ایک غریب کہتے ہیں ایک روٹی شمی 25 روپے کی ہے۔ ردا بینگ کا مدر، اگر آپ کو میں بات بتاؤں کہ آج میں اپنے بچوں کی اسٹیشنری لینے گئی، جو رجسٹر میں اپنے بچوں کا 300 کا لیا کرتی تھی وہ اب 600 کا ہو گیا۔ مڈل کلاس تو کہتے ہیں نا اس سے افیکٹ ہو رہا ہے، مگر اب اپر کلاس تک بات چلی گئی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو جتنی آج کل آپ سڑکوں پہ نکلیں تو اتنی حکومت کی گاڑیاں کے نیچے گرین پلیٹ لگی ہوتی ہے، اتنی گاڑیاں ہیں کہ انہوں نے ایک نارمل ملازم کو بھی گاڑی پکڑا دی ہے۔ پیٹرول مہنگا کر دیا کہ عام عوام جو ہے اپنی گاڑیاں گھر کھڑی کی ہوئی، اور گورنمنٹ ملازم کے پاس ہر ملازم کے پاس ایک نئی گاڑی موجود ہے۔ چھوٹے سے چھوٹی گریڈ کا بندہ ہے اس کو بھی انہوں نے گاڑی پکڑا دی ہے کہ خود جو گورنمنٹ ملازمین بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کی تو عیاشیاں ہیں، اور جو عام بندہ ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے۔ عام جو حلال کھانے والا بندہ ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے، وہ اپنی گاڑی نکالتے ہوئے جو لوگ کہتے ہیں نا آفس گھر کی گاڑیوں میں جایا کرتے تھے اب وہ یہ میٹرو سے جا رہے ہیں۔ ردا سائرہ بانو کی آپ نے وہ جو ایک سینٹ کی رکن ہے قومی اس میں انہوں نے بولا کہ مجھے شرم آتی ہے، میں کس منہ سے اپنے حلقے کے لوگوں کے پاس جاؤں گی ان کو کیا پتا کہ جو پیڑا عام گھر میں جو پیڑا خاتون اتنا بناتی تھی اب وہ پیڑا اتنا بنتا ہے۔ مہنگائی آپ عمران خان کے وقت میں مہنگائی شمی ہوتی تھی، عمران خان کے وقت میں بھی ہم 150 روپے لیٹر پیٹرول دے رہے تھے، مگر اس کا ہمیں آؤٹ پٹ مل رہا تھا، تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ عمران خان ہمارا ٹیکس جو ہے ہمارے اوپر ہی لگا رہے تھے۔ ان کی مہنگائی کرنے کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی، صرف اس لیے کہ خزانہ ملک کا خالی ہو، عوام پھر ٹیکس دے، پھر خزانہ بھرے، اور پھر یہ لے کر ردا IMF سخت سے سخت شرائط ان کو دے رہا ہے اور وہ یہ عوام سے منوا رہے ہیں۔ IMF کی ماننی پڑے گی نا شمی، کیونکہ ہم اس کے آگے بھکاری بن گئے ہیں۔ جو IMF پاکستان ہمارا نہیں رہا، IMF کا بن گیا، جو IMF کہے گی ہمیں وہ کرنا پڑے گا۔ اور وہی بات ہے نا شمی، عمران خان جیسے ہی واپس آئیں گے نا
1-1 रुपए का इनसे हिसाब इंशाल्लाह ले लें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी दोस्तों, इसके अलावा इमरान खान ने आज अपने खिताब में कहा कि 1100 अरब करप्शन इन्होंने अपनी माफ़ की और NRO 2 लिया। इमरान खान ने कहा कि आप गद्दार हैं, आप ज़िम्मेदार हैं, आपने मुल्क को यहाँ तक खड़ा कर दिया। इस मुल्क में तारीख़ी तरक्की हो रही थी, आज पाकिस्तान को उधर ला कर खड़ा कर दिया जहाँ ये लगता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की गई थी। आप और आपके सहूलतकार इसमें शामिल हैं। आज इमरान खान बहुत सख्त लहजे में थे और उन्होंने कहा कि उन्होंने ये भी कहा कि आज जो पाकिस्तान का जो हाल किया है उसमें सहूलतकार भी शामिल थे। और इमरान खान ने साथ साथ वार्निंग दी, उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हमारी हुकूमत जो है वो ज़रूर आएगी और चाहे कुछ भी कर लें तो हम बरसरे इक़्तिदार ज़रूर आएंगे। और इस बार रिदा इमरान खान ने कहा कि मैं इन जालिमों को, इन जो मुजरिम हैं, इनको मैं इंसाफ के खटेरे में ज़रूर लाऊंगा। शिमी देखें ना, आज इमरान खान इतने भरम क्यों थे, इन्होंने ना मजाक बना ले, बेहिसी इन्होंने अपने ऊपर तारीख कर ली, खुल के सामने आ रहे हैं और ज़रा शर्मिंदगी, ज़रा एहसास मदामत इनके अंदर मौजूद नहीं है। दिन ब दिन महंगाई करते चले आ रहे हैं, अवाम भूख से मरती चली आ रही है। सैलाब आके चला गया, सैलाब मुतासरीन रुल गए, बर्बाद हो गए, इनके ऊपर उफ नहीं हुई, इनके कहते हैं एक बाल इनका बीका नहीं हुआ, इनकी आंखों में ज़रा शर्म नहीं आई। मरियम नवाज आके उनके इंटरव्यू बड़े बड़े लिए जा रहे हैं, ये लिफाफी बेगैरत हो गए, इन्होंने बेगैरती का लिबादा अपने पर ओढ़ लिया, बेगैरत हो गए, इनकी आंखों में सुअर का बाल आ गया। इनको ज़रा एहसास नहीं है पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम चीखे मारे। आपने लाहौर में देखा कितनी आवाम निकल के बाहर आई, आवाम तंग आ गई है, आवाम की बस होती चली आ रही है। आवाम कहते हैं जो लोग घरों से निकलना पसंद नहीं करते थे, जो अपनी बीवियों को घरों से नहीं निकालते थे, वो भी घरों से बाहर आ रहे हैं। मिडिल क्लास तो बाहर आ ही रही है, जो ट्रैवल नहीं कर सकते, उनके पास ट्रैवल के पैसे नहीं है, मगर वो लोग भी बाहर आ रहे हैं कि बस अब बहुत हो गया, आवाम चिल्ला। और रही बात इलेक्शन की, शिमी इलेक्शन होने हैं तो इमरान खान को कहने की जरूरत ही नहीं है, इलेक्शन होंगे और इमरान खान वापस आएंगे ही आएंगे। और ना सिर्फ पाकिस्तानी वोट डालेगा, ओवरसीज पाकिस्तानी वोट डालेंगे। अब जो कहते हैं ना, जिन्होंने सारी जिंदगी वोट नहीं डाला, वो लोग भी वोट डालेंगे। जो 18 साल की हमारी यूथ होती चली आ रही है, वो सिर्फ NIC इसलिए नहीं बना रहे कि उन्होंने नौकरियां करनी है, उन्होंने अपने कॉलेज में NIC करवाने, अब वो NIC इसलिए बनवा रहे हैं कि उन्होंने इस साल जैसी इलेक्शन की तारीख अनाउंस होगी उन्होंने वोट देना है। एग्जैक्टली, और ये तो बहुत अच्छी बात है। उनकी वाहिद ख्वाहिश NIC बनाने की है कि हमने वोट देना है। हमारी यूथ जो 16 प्लस है, जो 17 प्लस है, अब उनकी भी ख्वाहिश है कि जैसे हम 18 साल के होंगे हमने भी इमरान खान को वोट देना है। कि अब दुनिया बेताब है कि इलेक्शन हो और हम अपनी ताकत आजमाएं। चाहे रिदा इलेक्शन अक्टूबर में हो, 2 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, लेकिन जीतना तहरीक इंसाफ कब तक नहीं कराएंगे शिमी, कब तक नहीं कराएंगे। और अगर इनको लग रहा है कि मुल्क को बर्बाद करके इमरान खान को हुकूमत देंगे तो अवाम जो इमरान खान का साथ छोड़ देगी, तो इनकी भूल है। अवाम जितना तंग 1 साल में आ गई है, इमरान खान को अवाम 5 साल देने को तैयार है कि जो हाल उन्होंने 1 साल में किया है। इमरान खान अगर 5 साल इस महंगाई को रखेंगे भी बेशक, तो मगर उसका आउटकम भी तो आएगा ना शिमी। महंगाई तो कम नहीं होगी, इतना तो हमें भी अंदाजा है कि इमरान खान के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। महंगाई वापस इमरान खान नीचे नहीं ला सकते, मगर उसको रोक सकते हैं। अगर कुछ सख्त फैसले, जिस तरह के सख्त फैसले ये कर रहे हैं ना, ये तो IMF की मान रहे हैं, हमें आगे कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर इमरान खान अवाम को कॉन्फिडेंस में लेकर सख्त फैसले करेंगे तो शायद अवाम भी उनके साथ खड़ी होगी। जो इमरान खान को हम टैक्सेस दे रहे थे, इमरान खान हुकूमत को, वो टैक्सेस हम पे लग रहे थे, हमारा मुल्क ऊपर की तरफ जा रहा था, हमें रिलीफ मिल भी रहा था। और एक लेवल पे आके इमरान खान ने उस महंगाई को रोका हुआ था। इन्होंने 1 साल में आके ना जिसने तबाही कर दी ना, अगले 10 साल में अगर इमरान खान को आवाम को देने पड़े ना तो आवाम तैयार है। रिदा देखिए, हम रोड्स पे गुजरते हैं, हम मोटरवे यूज़ करते हैं, हम टैक्स देते हैं, हम एक टूथपेस्ट भी लें उसका टैक्स भी देते हैं, हम चाय की पत्ती जो कि आप बकौल अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि शॉर्ट होती जा रही है, हम उस पर टैक्स देते हैं। इतना टैक्स देने के बावजूद ये IMF से पैसे लेते हैं, हमारा टैक्स का पैसे पे ये मुख्तलिफ मुल्कों में जाके अयाशियाँ करते हैं। शिमी खुल के सामने आ रहे हैं, मैं कह रही हूँ इनकी आंखों में सुअर का बाल आ गया है, बेगैरत हो गए हैं, खुल के अयाशियाँ कर रहे हैं, खुल के टूर्स कर रहे हैं। और आवाम जब सवाल करती है तो उठा के अंदर डाल दो। अगर कोई सहाफ़ी से सफाई कर ले तो उनका संटारोस बंद करवा दो। इनका सवाल, हम इनसे टैक्सेस हमारे, पैसा हमारा, खून हमारा चूस रहे हैं, हम सवाल भी नहीं कर। इतनी बेगैरती है इनके अंदर। बिल्कुल रिदा, इसके साथ साथ इमरान खान ने कहा कि अगर 90 दिन के अंदर इन्होंने इलेक्शन ना करवाए तो मैं आवाम से कहता हूँ, अपनी कौम से कहता हूँ कि बस हो गई, अब निकलना ज़रूरी है और ये हकीकी आज़ादी है। रिदा, इसके साथ साथ अभी लेटेस्ट ये न्यूज़ है कि अदलिया ने जो सो मोटो नोटिस ले लिया है अगर इन्होंने 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन ना करवाया। शिमी, इनका बाप भी इलेक्शन कराएगा,
इनका बाप क्या इनका ज़्यादा भी इलेक्शन कराएगा, अगर नहीं कराता ना, अभी परसों लाहौर में देख लें जो इलेक्शन आया है, ये सिर्फ लाहौर था शिमी, अभी तो पठान जागा ही नहीं है। एग्जैक्टली अभी कल आपको नजर आएगा जब पठान जागेगा इनकी ईट से ईट बजा देगा। और जितनी अफरा तफरी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर मची हुई है ना, इनके सहूलतकारों में मची हुई है, ये कहीं भी मुंह नहीं छुपा पाएंगे। ये पाकिस्तान छोड़ के भाग भी जाएंगे तो ओवरसीज पाकिस्तान इनको नहीं छोड़ेंगे। जितना गुस्सा आवाम के अंदर है ना शिमी, परसों इनको ट्रायल मिल गया, 90 दिन इनके बड़े भारी गुजरने हैं। और जितना मुझे अंदाजा है 90 दिन के अंदर फैसला हो जाएगा, इलेक्शन लाजमी होंगे। जिस तरह आवाम अब जा रही है, आवाम उड़ गई है, जो लोग सो रहे थे ना वो भी उड़ गए, जितनी महंगाई कर चुके हैं। हुकूमत जो कर रही है ना वो अपने आप को और एक्सपोज कर, मतलब अब रह क्या गया है सिवाय इसके कि जो है ना वो आपको धक्के दे के इस्लामाबाद से निकाला जाए। अगला महीना इनको फिर अंदाजा हो जाएगा, अगला महीना रमजान का है ना शिमी, बिल्कुल आवाम और आगे साथ जितना ये बम फोड़ने चले हैं ना अभी महंगाई का, रमजान में इनको लग पता जाएगा कि होता क्या। जो लोग अब नहीं निकलते ना रमजान में, वो लोग भी निकलेंगे जितनी महंगाई करने चले आगे। बिल्कुल सही। जी दोस्तों, इमरान खान ने अपने आज के खिताब में लाहौरियों का शुक्रिया अदा किया, थैंक्स टू लाहौर। और इमरान खान ने कहा कि यह हकीकी आज़ादी है। और इमरान खान ने साथ साथ ये भी कहा कि 10 अप्रैल से जो हकीकी आज़ादी शुरू हुई थी उसका तसलसल जारी है। और इसके साथ साथ इमरान खान ने ये कहा कि जो शहबाज शरीफ जो बम महंगाई का बम जो अवाम पर फेंक रहे हैं, वो बम की सूरत में अवाम जो है ना वो लुटाएगी नवाज शरीफ को। इसके साथ साथ इमरान खान ने कहा कि जो 400 अरब का जो टैक्स है वो बिजली महंगी की जा रही है और अवाम पर 400 अरब का टैक्स एक्स्ट्रा सरचार्ज का टैक्स जो है वो लगाया जाएगा। और IMF ये कह रही है कि अवाम पर ये 4 महीनों का टैक्स ना लगाया जाए, बल्कि साल के 12 महीने ये 400 अरब का टैक्स जो है वो आवाम पर लगाया जाए। इसके साथ साथ जो है चाय की पत्ती की शॉर्टेज हो रही है पाकिस्तान में। और इसके अलावा 10 महीने में इमरान खान ने बताया कि 10 महीनों में जो पाकिस्तान के साथ इन्होंने हाल किया वो कोई दुश्मन भी किसी के साथ नहीं करता। रिदा, इतने सख्त अल्फाज आज अगर IMF टैक्स लगा, सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट करूँ, अगर IMF टैक्स लगाती है ना बिजली पर शिमी, तो आवाम के पास एक बेहतरीन हल इसका ये है कि बिजली के बिल घर पे रखे जाएं और बिजली के बिल किसी सूरत ना दिए जाएं। एग्जैक्टली, बीइंग अ हाउस वुमेन हम लोग ये चाहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तो अपना बिजली का बिल बिल्कुल भी, इलाके के लोग अगर बिजली के बिल ना दें तो ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हम बिजली इस्तेमाल भी करेंगे और हम बिल भी नहीं पे करेंगे। लेके जाते मीटर ले, कितने घरों के मीटर उतारोगे? 1 इलाके के मीटर उतारोगे, 2 इलाके। जब हम टैक्स देंगे ही नहीं तो ये टैक्स लगाएंगे कैसे? ये आवाम ने फैसला करना है कि हमने नाजायज टैक्स अब नहीं देने, इस मुल्क को आगे हमने रन नहीं कराना, ये अब आवाम ने फैसला करना है। और अब ये फैसला हो जाना चाहिए कि हमने इस मुल्क को आगे नहीं लेके जाना इस हुकूमत के साथ। ये आवाम फैसला करेगी। अगर टैक्सेस लगाते हैं तो आवाम को चाहिए कि बिजली के बिल ना दे, कितने मीटर उतारेंगे? वैसे इतनी महंगी बिजली का हमने 4 डालना है, AC हम नहीं चला सकते, पंखे हम नहीं चला सकते, 2 पंखे चलने थे वहाँ 1 पंखा हम चलाएंगे। तो सोचा पंखे बंद करो, 1 महीना 2 महीना 3 महीने की मुश्किल होगी, तीसरे दिन को लग पता जाएगा। एग्जैक्टली जी दोस्तों, इस हुकूमत में बैठे लोगों की जायदादें मुल्क से बाहर हैं, आवाम पर महंगाई का बोझ डाल रहे हैं। इमरान खान ने इन्हें ये कहा कि अगर आप लोगों के दिलों में आवाम के लिए इतना प्यार और इतना एहसास है तो अपने रुपए जो डॉलर की शक्ल में बाहर पड़े वो पाकिस्तान लेकर आएं और लोगों पर ये महंगाई मत डालें। रिदा, इसके बारे में क्या कहें? इनको पाकिस्तान की आवाम से क्या पड़ी है? अगर पड़ी होती 1 साल में कुछ तो करते हैं ना, लूट खसोड़ के खा गए। पाकिस्तान की आवाम की इनको पड़ी है? पाकिस्तान की आवाम को तो बहराना करने पे लगे हुए। पाकिस्तान की आवाम को तो उन्होंने भिखारी कह दिया, इनको पाकिस्तान की आवाम की कहाँ लगी हुई है? इनको पाकिस्तान में इनका कोई लेने देना नहीं, ना पाकिस्तान की आवाम का इनसे कोई लेने देना, ना इनका पाकिस्तान की आवाम से कोई लेने देना। ये सिर्फ वो नासूर हैं जो आवाम से चिपड़ गए। एग्जैक्टली जी दोस्तों, इमरान खान ने ये कहा कि शहबाज शरीफ ये कौम का इनकलाब है और कौम इनकलाब के लिए तैयार है। आप अपने और अपने भाई की तस्वीरें जो अखबारात में लगाते हैं, जो तुर्की की तस्वीरें लगाते हैं, कौम बेवकूफ़ नहीं है, कौम जाग गई है। रिदा, इमरान खान का इतना खुल के बोलना, क्या कहेंगी इस बारे में? आज आपने देखा है ना, अवाम में खौफ खत्म हो गया। बिल्कुल, अवाम में बेरोजगारी भूख इतनी बढ़ गई है कि अब वो कहते हैं कि पकड़ना है पकड़ो, मारना है मारो, बहराना करना है बहराना करो, हर तरह का जुल्म कर लो, मगर अब ये महंगाई हमसे बर्दाश्त नहीं। आज हम कहते हैं ना, कुछ औरतें तो ये भी हैं जो घर से वसीयत करके निकली हैं कि अगर हमें कुछ हो जाए, बच्चों को बता रही हैं कि तुम लोग इतना याद रखना कि तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए हमने कुर्बानी दी। बिल्कुल, माएँ बाप भाई कहते हैं बच्चे कुर्बानी देने को तैयार हैं। आज हमने लाहौर में देखा जिस तरह कुरैशी के साथ और असद उमर के साथ आवाम थी, खौफ के बुत तोड़ दिए। इमरान खान ने कहा कि सिर्फ 200 बंदे गिरफ्तारी देंगे, वरना हजारों बंदे वहाँ मौजूद थे। और सुबह से, हालांकि 2 बजे की गिरफ्तारी थी,
صبح سے لوگ موجود تھے اور بے شک لوگ گرفتاری نہ دیں مگر اسد عمر کا ساتھ دینے کے لوگ وہاں کھڑے تھے. اور بہت بڑی بات ہے, لوگ اب ڈرتے نہیں, پکڑنا ہے پکڑ لو, مارنا ہے مار لو. اب لوگوں میں خوف ختم ہو گیا کیونکہ بے روزگاری مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں اب تو مرنا ہے تو موت ہی صحیح. صحیح. جی دوستو, اس کے ساتھ ساتھ جو پشاور میں بھی کل سے جیل بیرو تحریک کا آغاز شروع ہو رہا ہے, اور پشاور کے لوگ جو ہیں وہ بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں. عمران خان نے بھی اپنی تقریر میں یہ کہا کہ مجھے میسیجز آ رہے ہیں, فون آ رہے ہیں کہ خان صاحب ہم کل کے دن کا انتظار کر رہے ہیں. تو لیٹس سی کہ کل کیا ہوتا ہے. ولاگ کے آخر میں ایک تھوڑا سا ایک پوائنٹ ردا ڈسکس کریں گی. بلوچستان میں جو خاتون کو جلایا گیا, جس کے ساتھ ظلم کیا گیا, ردا اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہاں پاکستانیوں کو کہتے ہیں نا, عام ہمارے ایکس پرائم منسٹر کو انصاف نہیں ملا تو اتنا شور شرابہ کرنے کا فائدہ نہیں ہے. اسد عمر کہتے ہیں نا ان کو کیا نام ہے, فواد چودھری کو رات کے اندھیرے میں اٹھا لیتا ہے, حالانکہ صرف اس کو منشی کہنے پر, اور ان کو وہاں عدالت بلایا جا رہا ہے. جی دوستو, کل انشاءاللہ ایک دوبارہ ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے.